everyone, welcome to my channel. I hope everyone is safe and doing well. So guys, before starting this video, I just want to give you people a glimpse about what you're gonna exactly learn in this video. So what you're gonna learn is first, you're gonna learn about relative strength indicator, okay? Relative strength indicator जो है RSI है, you're gonna learn the meaning about it, okay? In a very layman language, I will try to explain that meaning to you. And second thing that you're going to learn is how to calculate the same indicator, that same RSI, yourself in an Excel sheet. So basically, I'm going to talk about the formula used in an indicator. So now I will be talking about RSI. What exactly is RSI? So first of all, I'm going to explain this in a very layman language. I'm not going to go into technicals of it, okay? So if I talk about RSI in a very layman language, first we will break down the words, okay? So relative strength. First of all, if I talk about relative, how you will be able to relate some things. First of all, before even relating, you need some things. For example, before relating things, you need two objects to relate, right? So, if you have two objects, you are able to relate. For example, if I relate to some other girl, I am relating who is stronger, whether I am stronger than her or whether she is stronger than me. So, I am relating, okay? I am comparing it, okay? So, main thing that you need to understand here is you are going to compare two things, okay? So, in my case, there was that girl, but in case of stock market, there can be either two companies, that is either two stocks, or it can be either Nifty and it can be a stock, that is Nifty and a stock. So in case of stock market, in case of that indicator, क्या formula use किया है, I'm going to talk about those things, right? So yeah, if someone asks you from further कि भाई relative strength का मतलब क्या है वो तो बताओ, so what you're gonna say, relative strength is simply comparing two stocks, or it's comparing Nifty and a stock, okay? So that's it. That's what basic meaning of relative strength indicator is, index is. And second thing that you're gonna learn is the formula, okay? So for that, I will share the screen for the same. So yeah, without further ado, let's get started. So जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी एक RSI को कैलकुलेट करके रखा है एक्सेल शीट में. मैं आपको वापस से बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट किया है. उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ RSI. तो RSI का फार्मूला है 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 प्लस RS. RS इज़ नथिंग बट रिलेटिव स्ट्रेंथ. तो RS इज इक्वल टू तो अभी RSI के लिए हमें RS निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम RSI निकल पाएंगे. तो RS का फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस एवरेज गेन इंटू 13 प्लस करंट गेन डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय लॉस वाला है. प्रीवियस एवरेज लॉस इंटू 13 प्लस करंट लॉस डिवाइडेड बाय 14. इन शॉर्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, या न्यूमरेटर में हम गेन लेते हैं, डिनोमिनेटर में हम लॉस लेंगे, उसको डिवाइड करोगे तो आपको RS मिल जाएगा. उसको हम RSI के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डाल देंगे, एंड वी विल अराइव एट RSI. ठीक है. सो अभी RS के फॉर्मूला पे जाते हैं. RS के फॉर्मूला में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 13 से और डिवाइड किया है 14 से. तो ये तो दोनों कांस्टेंट है. तो अभी इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. तो अभी ढूंढेंगे क्या RS रिलेटिव स्ट्रेंथ में. तो रिलेटिव RS में हमें गेन और लॉस चाहिए और उसका एवरेज चाहिए. तो गेन और लॉस फाइंड करने के लिए ये आप जैसे कि टेबल देख रहे हो, ये जो है टेबल का, तो इसमें A और B, तो उसके लिए अभी मैंने क्या किया है, मैंने पहले तो ये जो A और B कॉलम आपको दिख रहा है, डेट और ये क्लोजिंग प्राइसेस दिख रहे हैं, ये मैंने NSE के वेबसाइट से हिस्टोरिकल डेटा में जाके मैंने डाउनलोड कर लिया है. ये जो मैं कैलकुलेट करने वाली हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ये मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइसेस कंसिडर किया है मैंने फॉर द प्रीवियस 1 मंथ. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 18th August 2028. सो मैंने 17th जुलाई 2028 से लेके मैंने 17th August, मैंने 1 मंथ कंसिडर किया है. सो 1 मंथ, एंड यहाँ
कि 17 और 28 जुलाई, राइट। तो ये दोनों जो डेट है, ये दोनों डेट का क्लोजिंग जो प्राइसेस है, इसमें जो चेंजेस है ये पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज है एज इन वेदर ये गेन है, मतलब पिछले दिन से मेरा आज का रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ा है या घटा है। तो अगर वो बढ़ा है तो वो गेन हो गया रहेगा। जैसे कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज कल के दिन 100 रुपये में था और आज वो 120 में बिक रहा है, तो इसका मतलब है मेरे को 20 रुपीज़ का, मेरे को या फिर बोलो शेयर्स में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 20 रुपीज़ का गेन हुआ है या फिर फ्रॉम प्रीवियस डे, राइट। तो वही, तो यहाँ पे चेंज को कॉलम लाने का यही रीज़न है। आई विल बी एबल टू कैलकुलेट गेन एंड लॉस फ्रॉम द प्रीवियस डे। ओके, सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, F2 कर दूँ अगर मैं, तो हियर यू कैन सी द फॉर्मूला दैट इज B4 माइनस B3। B4 इज नथिंग बट 28 जुलाई, मतलब आज का दिन समझो, आज 28 जुलाई है समझो, तो 28 जुलाई और 17 जुलाई 18 19 सैटरडे संडे होगा, तो 17 जुलाई में कि मतलब 17 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर्स 1911 में था, बट वही 20 जुलाई को उसका शेयर का क्लोजिंग हुआ है प्रीवियस डे से 1919 पे, जो कि 8 रुपये से बढ़ा है, राइट। सो मैंने वही चेंज का रीज़न कॉलम वही डालने का, सो एज टू फाइंड आउट द गेन एंड लॉस फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइसेस, previous day's closing price, fine. So you could see 8.2 is nothing but difference between these two closing prices. Now in this, now just you have to just copy the formula and you have to paste it down. Okay, so this is how you calculate the change. Now here I have calculated the change. Now I will separate this into gain and loss. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 22 डेज़ का डेटा है, आई मीन दिस इज़ द डेटा ऑफ प्रीवियस 1 मंथ, बट उसमें सैटरडे संडेज हटा दोगे तो यू विल फाइंड यहाँ पे 22 डेज़ के ही एंट्रीज दिखेंगे, फिर यू विल सी द काउंट ऑफ 22, तो इट मीन्स यहाँ पे 22 डेज़ का डेटा है। तो यहाँ पे अभी 22 डेज़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कितने बार गेन किया है और कितने दिन उसने लूज़ किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज समझो 22 डेज़ में से उसने 15 दिन वो गेन में था, गेन या फिर पॉजिटिव में था पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइसेस से, तो मैंने उसे सेपरेट किया है। तो जैसे कि यू कुड सी हियर इन द डी कॉलम, यहाँ पे मैंने गेन किया, गेन अलग से सेपरेट किया, यहाँ पे मैंने लॉस अलग से सेपरेट किया है, एंड देन मैंने एवरेज गेन निकाला है, देन एवरेज लॉस निकाला है, देन सिंस मेरे को एवरेज गेन और लॉस मिल गया यहाँ पे, यू कुड सी दी फॉर्मूला जो कि एवरेज गेन और एवरेज लॉस है वो मिल गया मेरे को, एंड करंट गेन एंड करंट लॉस तो इधर से ही मिल जाएगा डी और ई से, राइट। तो जैसे ही ये मिल गया आई कैलकुलेटेड द रिलेटिव स्ट्रेंथ, एंड जैसे ही आर एस मिल गया आई सब्स्टिट्यूटेड इट इन दी आर एस आई फॉर्मूला, एंड मेरे को आर एस आई का इंडिकेटर का जो भी डेटा है जैसे 67, 63 ये मेरे को वैल्यूज़ मिल गए RSI के। सो मैंने यहाँ पे RSI 14 डेज़ के लिए कैलकुलेट किया है। ओके, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट होगा तो आपने देखा होगा कि EMA और MA जो होता है वो सब केसेस में डिफ़ॉल्ट जो आता है इंडिकेटर्स में तो वो 14 डेज़ ही होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर का भी डिफ़ॉल्ट इज़ 14 डेज़, तो इसलिए मैंने RSI 14 डेज़ के लिए ही कैलकुलेट किया है। यू कैन कैलकुलेट RSI फॉर वॉट एवर डेट यू वांट, आई मीन फॉर आप 22 दिन के फॉर 22 डेज़ ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट, 30 दिन के लिए कैलकुलेट, जैसा भी आपकी इच्छा हो, बट यहाँ पे मैंने 14 डेज़ के लिए कैलकुलेट किया है। तो सिंस यहाँ पे चेंज तक तो आपको समझ आ गया रहेगा, तो यहाँ पे मैंने गेन और लॉस को सेपरेट किया है, राइट। तो सेपरेट करने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, मैंने इफ़ का फॉर्मूला यूज़ किया है, एंड यहाँ पे लॉस के लिए भी मैंने इफ़ का फॉर्मूला यूज़ किया है। सिर्फ गेन और लॉस में फॉर्मूलाज तो दोनों मैंने इफ़ का ही यूज़ किया है, बट मैंने लॉस के टाइम पे मैंने मेरे को लॉस नेगेटिव में नहीं, सिंस मैं अलग अलग सेपरेट कर ही रही थी तो मेरे को लॉस वाले कॉलम में मेरे को नेगेटिव नहीं दिखाना था, वापस से करके मैंने यहाँ पे एक और ABS एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ किया है इन ऑर्डर टू अराइव एट पॉजिटिव वैल्यू। ओके, बिकॉज मैं वैसे भी सेपरेट तो कर, यहाँ पे जैसे ही ई कॉलम आप देख रहे हो, ये ई कॉलम क्या है, लॉस का कॉलम है। अभी इसमें वापस से मैं नेगेटिव 81 दिखाऊँ, इसका मतलब
आई डिडंट फाइंड इट दैट यूजफुल, सो मेरे को नेगेटिव नहीं दिखाना था यहाँ पे. ओके फाइन. सो एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट नेगेटिव मेरे को नहीं दिखाना था. इनफैक्ट RSI जो है उस इट इज़ एन ऑसिलेटर राइट. RSI इज़ एन ऑसिलेटर जो कि 0 से लेके 100 के बीच में होता है. सो नेगेटिव तो वैसे भी आना ही नहीं चाहिए RSI में. सो इसके लिए मेन रीज़न तो वही है कि इसके लिए जब हम लॉस को, जैसे जब हम चेंज से अलग अलग करेंगे गेन और लॉस को, तो लॉस के केस में योर वैल्यू शुडंट बी इंक्लूडिंग नेगेटिव साइंस इन इट. वाई? बिकॉज RSI इटसेल्फ सेज दैट कि वो 0 से लेके 100 के बीच में रहता है. ओके तो यहाँ पे गेन के टाइम में आई हैव यूज्ड इफ फंक्शन. सो एज यू कुड सी यहाँ पे गेन और लॉस तो मैंने अलग अलग कर दिया है, और मैंने इसलिए ही रीज़न आपको समझ गया कि मैंने नेगेटिव क्यों यूज़ नहीं किया है वेल कैलकुलेटिंग लॉस. सो इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इफ़ का फॉर्मूला कैसे कर लिखते हैं या हाउ टू यूज़ इफ़ फंक्शन एंड इफ़ फॉर्मूला, देन यू कैन कमेंट मी डाउन. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू यूज़ फॉर्मूला ऑफ इफ़. ठीक है. सो यहाँ पे गेन और लॉस आप सेपरेट कर दिए. उसके बाद में यू नीड एन एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस राइट. वही तो मेन है यहाँ पे. देखो यहाँ पे व्हेन यू कैलकुलेटेड इन दिस डी एंड ई कॉलम, यहाँ पे आपको करंट गेन और करंट लॉस मिल गया. ठीक है. अभी आपको चाहिए प्रीवियस एवरेज गेन और प्रीवियस एवरेज लॉस. तो उसके लिए क्या करोगे आप, और उसके लिए आपको सेम एवरेज निकालना है इन शॉर्ट गेन्स का. तो बेसिकली कुछ है नहीं अभी, बट यहाँ पे सिंस मैं 14 डेज का RSI ले रही हूँ, आई नीड एवरेज ऑफ एटलीस्ट 14 डेज का RSI राइट. सो यहाँ पे गेन के यहाँ पे मैंने 6 अगस्त से मेरे को, जैसे कि आप थर्ड रो से देखो एंड ये 16th रो तक, दिस कम्स टू 14. ओके यहाँ पे 17 से लेके 5th यू कुड सी दी काउंट, यहाँ पे 14 आया राइट. तो मेरे को एटलीस्ट 14 डेज का एवरेज तो चाहिए. तो फॉर एवरेज गेन आई नीड एटलीस्ट एवरेज ऑफ प्रीवियस 14 डेज गेन. सो उसके लिए मैंने सिंपली एवरेज का फॉर्मूला यूज़ कर दिया दैट. ठीक है. एवरेज का फॉर्मूला लगा दो, आपको एवरेज मिल जाएगा फॉर द लास्ट 14 डेज. एंड सेम इज द केस इन केस ऑफ लॉस. एवरेज लॉस भी मैंने सेम एवरेज लिख दिया और आ गया. ठीक है. अभी एवरेज गेन और एवरेज लॉस तो मिल गया, बट ऐसा नहीं कैलकुलेट करना है. तो ये ऐसा सिंपली मैंने फॉर्मूला जो यूज़ कर लिया एवरेज गेन एवरेज लॉस के लिए, डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला लगाया, दैट इज़ नॉट करेक्ट. बिकॉज हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 13 से और उसे डिवाइड भी करना है 14 से राइट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट RS. तो उसके लिए यहाँ पे ही किया है. देखो तो यहाँ पे एवरेज गेन के लिए मैंने क्या किया है, प्रीवियस एवरेज गेन इंटू 13 प्लस करंट गेन. ये जो है प्रीवियस एवरेज गेन इंटू 13 प्लस करंट गेन, ये मैंने F वाले कॉलम में कर दिया है. तो सी यहाँ पे ये फर्स्ट वाला हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर दैट. बट सेकेंड वाले केस से आपको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऐसे यू कुड सी हियर मैंने क्या किया है, फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रीवियस एवरेज गेन. तो यहाँ पे तो प्रीवियस एवरेज गेन है ही नहीं मेरे पास बिकॉज यही मेरा स्टार्ट है. तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ नॉर्मल सिंपली एवरेज निकाल लिया है लास्ट 14 डेज़ के लिए. बट जैसे ही मैं 7 अगस्त के लिए जैसे मैंने कैलकुलेट किया, तो 2 अगस्त के लिए कैलकुलेट की, तब मैंने प्रॉपरली जो फॉर्मूला में दिया गया है मल्टीप्लाई बाय 13 और डिवाइड भी करना है उसे 14 से, वो भी मैंने कंसिडर किया है. तो एज पर फॉर्मूला व्हाट इट सेज प्रीवियस एवरेज गेन इंटू 13. तो यहाँ पे प्रीवियस एवरेज गेन क्या है, F कॉलम का ये जो 17 है राइट. तो ये जो है F17 इज प्रीवियस एवरेज गेन इंटू 13 प्लस करंट गेन. ये क्या है, C18 इज नथिंग बट करंट गेन. ओके तो करंट गेन क्या रहेगा, ये जो T कॉलम में दिख रहा है आपको, तो D कॉलम में जो दिख रहा है 12.35 दैट इज योर करंट गेन डिवाइडेड बाय 14. ठीक है. एंड इन द सेम मैनर यू
यू कैन कैलकुलेट लॉस, क्या प्रीवियस एवरेज लॉस। तो ये जो 15 जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है वो इंटू 13 कर दो, उसे प्लस कर दो एवरेज लॉस से जो कि यहाँ पे 0 है, उसे डिवाइड बाय 14 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रीवियस एवरेज लॉस। एंड बस इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस। अभी आप इस RS निकालने के लिए इट इज़ ये न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करना है जहाँ पे एवरेजेस है, राइट। तो मैंने सिंपली F17 डिवाइडेड बाय G17 किया, F कौन से एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस कर दिया है मैंने। एंड देन लास्टली व्हाट फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 प्लस RS, राइट। ये है इसका फॉर्मूला। तो इसको बस सब्सटीट्यूट करना है हमें, तो मैंने भी सेम किया है, सब्सटीट्यूट ही किया है। ओके यहाँ पे मैंने ओके सो यू कैन सिंपली इफ आई एम रिमूविंग दिस फॉर अवॉइडिंग कंफ्यूजन राइट नाउ सिंस ऑलरेडी ओके। तो यहाँ पे सिंपली व्हाट क्या किया है मैंने, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 प्लस RS यहाँ से आया है H वाले कॉलम से, ठीक है। And here is your RS is nothing but relative strength indicator. Abhi if you want you can compare it with the digital calculated RSI in your DMAT account, but थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा बिकॉज आपने देखा ही है कि हमने जो 17th वाला ये जो था कॉलम, ये वाले केस में हमारे पास प्रीवियस एवरेज गेन नहीं था, तो हम लोग ने सिंपली यहाँ पे क्या किया, एवरेज का फॉर्मूला लगा के फर्स्ट वाले के लिए वी एज्यूम्ड इट कि 32 ही रहेगा। तो सिंस यहाँ पे हमारा इशू हो जाता है कि हमारे पास प्रॉपर आंसर नहीं है इसके लिए, वी जस्ट सिंपली टुक एवरेज, तो इसकी वजह से थोड़ा 19-20 का डिफरेंस रहेगा वाइल कंपेयरिंग इट। सो उतना चलता है बिकॉज अभी मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी कांट हैव एवरीथिंग, राइट। बट दिस इज़ हाउ you calculate RSI. This is what I could say you could have an idea about यार indicator के पीछे क्या है exactly what is being used behind the indicator, right? So yeah, if you want I can compare it for you. यहाँ पे 6th अगस्त को कितना बताया है, 67.184, right? So sorry, so यहाँ पे दिस इज 6th अगस्त, यहाँ पे आप देख लो इट इस अप्रॉक्सीमेटली सेम, मतलब 2-3 पॉइंट्स का डिफरेंस है और 64 ऐसे ही आ रहा है, फाइन। एक लास्ट वाला देख लेते हैं, दैट इज 17 अगस्त 28 का 54 बता रहा है, एंड वही यहाँ पे 57 आ रहा है। सो 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है, सो वो रहेगा, वी कांट गेट एग्जैक्ट बट दिस इज व्हाट is the mathematics used behind an indicator. So guys, that's it for this video. And lastly guys, if you like this video, please hit that like button, and if you have any queries regarding this video, do comment down below. And if you are very new to this channel, please do not forget to hit that subscribe button and the bell icon.